Hello, listening friends. We are delighted that you have tuned in to listen to this program once more. नमस्कार श्रोता मित्रों, हमें खुशी है कि आप इस कार्यक्रम को सुनने के लिए एक बार फिर से शामिल हुए हैं। As you know, we have been in a chain of messages of the words of Jesus from the cross, and they are 7 in number. जैसे कि आप जानते हैं, हम क्रूज पर से यीशु के वचनों के संदेशों की एक कड़ी को देखते आ रहे हैं, जो गिनती में 7 हैं। And I want to talk to you about the caring spirit. और मैं आपसे दूसरों की चिंता करने वाले आत्मा के विषय में बात करना चाहता हूँ। In the last 2 broadcasts, we heard the first 2 statements from the cross. पिछले 2 प्रसारणों में हमने क्रूज पर से 2 घोषणाओं को सुना। In his suspension, he was the Son of God, yet not in heaven. वहां लटका हुआ वो परमेश्वर का पुत्र था, फिर भी स्वर्ग में नहीं। He was the Son of Man, and yet not on earth. वो मनुष्य का पुत्र था, फिर भी धरती पर नहीं। He was just suspended. वो केवल लटका हुआ था। We saw the first 2 statements of Jesus exercising his divine prerogative. हमने यीशु को पहली 2 घोषणाओं में उसे अपने ईश्वरीय विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए देखा। First he said, Father, forgive them, for they know not what they're doing. पहली घोषणा में उसने कहा, पिता उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। Thus he was exercising his high priestly role of intercession. ऐसे वो मध्यस्थता की अपनी महायाजकीय भूमिका निभा रहा था। In the second statement, he exercised his divine prerogative as he received prayer of repentance, being king. दूसरी घोषणा में जब उसने पश्चाताप की प्रार्थना सुनी, तो उसने राजा होने के अपने ईश्वरीय विशेषाधिकार का इस्तेमाल किया। Those 2 statements revealed his divinity. उन 2 घोषणाओं ने उसके ईश्वरत्व को प्रकट किया। Therefore, it is natural that the third statement has to do with his humanity. इसलिए ये स्वाभाविक ही है कि तीसरी घोषणा मानवता से संबंधित होगी। The scripture clearly teaches that the Lord Jesus Christ was fully God, at the same time fully man. वचन साफ साफ सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह पूरा परमेश्वर था और साथ ही पूरा मनुष्य। His divinity and supernatural power over nature was displayed in splendor when he rebuked the wind and silenced the storm. प्रकृति पर उसकी ईश्वरीय और अलौकिक शक्ति प्रताप में प्रकट हुई जब उसने हवा को डांटा और आंधी को शांत किया। His humanity was revealed when he was asleep in the boat. उसकी मानवता तब प्रकट हुई जब वो नौका में सो रहा था। His divinity was exercised when he called out in a loud voice, Lazarus! And a dead man who had been dead for 4 days got up out of the grave and walked. उसके ईश्वरत्व का प्रयोग हुआ जब उसने ऊंची आवाज से पुकारा, लाजर! और एक मृत व्यक्ति जो 4 दिनों से मरा हुआ था, कब्र में से निकलकर चलने लगा। His humanity was revealed when he wept at Lazarus' tomb. उसकी मानवता प्रकट हुई जब वो लाजर की कब्र पर रोया। If the doctors would say to me that I have a few days to live, no matter how involved I am in my work and with the world outside, the last few precious moments I would want to spend caring for my family. यदि डॉक्टर मुझसे कहे कि मेरे पास जीवन के थोड़े से दिन ही बचे हैं, तो चाहे मैं अपने काम और बाहर संसार में कितना ही व्यस्त क्यों न हूं, अंतिम कुछ क्षण मैं अपने परिवार की चिंता करने में व्यतीत करना चाहूंगा। And so it was with Jesus at his death. और अपनी मृत्यु के समय यीशु के साथ भी ऐसा ही था। The circle of his involvement began to narrow. उसकी उपस्थिति का दायरा छोटा होने लगा था। He first prayed for his transgressors, पहले उसने अपने गुनाहगारों के लिए प्रार्थना की, those who nailed him to the cross. उनके लिए जिन्होंने उसे कीलों से क्रूस पर ठोका था। Secondly, the circle begins to narrow, दूसरा, दायरा तंग होना शुरू हो जाता है and he became involved with just one person who was in need. और वो केवल एक मनुष्य के साथ व्यस्त हो गया जो आवश्यकता में था। Then the circle narrowed further when he concentrated upon his family. फिर ये दायरा और छोटा हो गया जब उसने अपने परिवार के विषय में सोचा। In fact, these were the last words Jesus spoke directly to anyone or about anyone. बल्कि ये अंतिम शब्द थे जो यीशु ने स्पष्ट रूप से किसी के लिए या किसी के विषय में बोले।
In the gospel account, John tells us, just as the soldiers were gambling over his seamless outer garment, Jesus looked at Mary. शुभ संदेश विचारों में यूहन्ना हमें बताता है कि जब सैनिक उसके अनसिले वस्त्र पर चिट्ठी डाल रहे थे, यीशु ने मरियम की ओर देखा। Mary stands by the cross, not only broken-hearted, watching her son tortured and tormented, but no doubt confused, bereaved and bewildered. मरियम क्रूस के पास खड़ी है, न केवल टूटे हुए दिल के साथ अपने पुत्र की यातना और संताप देखते हुए, लेकिन कोई संदेह नहीं कि उलझन में कुछ खो चुकी और संताप और घबराहट में गुम। When the angel Gabriel proclaimed to her the good news of her carrying in her womb the divine Son of God, the Bible said Mary was troubled. जब जिब्राइल स्वर्गदूत ने उसे खुशखबरी सुनाई कि वो परमेश्वर के पुत्र को जन्म देगी, तो बाइबल बताती है कि मरियम घबराई थी। And this becomes Mary's lot in life. She was often troubled and puzzled. और मरियम के जीवन में ये बहुत बार होता है, वो अक्सर परेशानी और उलझन में रही। She was puzzled with the news of a child without an earthly father. वो बिना शारीरिक पिता के एक बच्चे के जन्म के समाचार से उलझन में पड़ गई। She was puzzled when she saw people accuse him falsely and were out to trick him and destroy him. वो घबराई हुई थी जब उसने लोगों को यीशु के विरुद्ध झूठे दोष लगाते हुए देखा और देखा कि वो उसके साथ ठट्टा करने और उसे नाश करने पर उतारू थे। And now she is puzzled again as her heart breaks in two, seeing her son hanging on an instrument of torture. और अब वो एक बार फिर से घबराई हुई है, अपने पुत्र को यातना के उस साधन पर लटका हुआ देखते हुए, जब उसका हृदय टूटकर दो भाग हो गया है। And if you are a faithful follower of the Lord Jesus Christ, no doubt there are many times in your life when you are puzzled. और यदि आप प्रभु यीशु मसीह के विश्वास योग्य अनुयायी हैं, तो कोई संदेह नहीं कि आपके जीवन में बहुत बार ऐसे समय आते हैं जब आप उलझन में पड़ते हैं। You may be puzzled as to why God did not answer your prayers. शायद आप उलझन में हों कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं दिया। You may be puzzled at the seemingly unjust and unfair things that happen to you. शायद आप अपने साथ घटती हुई प्रत्यक्ष रूप से अनुचित और प्रतिकूल बातों के कारण उलझन में हों। But like Mary, you and I are to stand firm in obedience to the will of God, knowing that He has the whole world in His hand. लेकिन मरियम की तरह आपको और मुझे भी परमेश्वर की इच्छा में दृढ़ता से खड़े रहना है, जानते हुए कि सारा संसार उसके हाथ में है। In fact, this was the subject of prophecy that seemed unusual at the time. बल्कि ये उस भविष्यवाणी का विषय था जो उस समय असामान्य लग रही थी। When Jesus was about a month old, his mother and Joseph took him to the temple, and there Simeon the priest uttered the first prophetic words in the New Testament. जब यीशु 1 महीने का था तो उसकी माता और यूसुफ उसे परमेश्वर के भवन ले गए और वहां याजक शिमोन ने नए नियम में भविष्यवाणी के पहले शब्द उच्चारण किए। And he looked at what must have been at the time a teenage girl with a child without a husband, and he said to her, a sword will pierce your own soul too. और उसने उसे एक ऐसे समय में देखा होगा कि एक छोटी लड़की एक बच्चे के साथ बिना पति के है, और उसने कहा, एक तलवार तेरे अपने प्राणों को भी भेदेगी। 10 months earlier, she was told that she was highly favored. 10 महीने पहले उसे बताया गया था कि उस पर बहुत कृपा है। 10 months earlier, she said, every generation will call me blessed. 10 महीने पहले उसने कहा था, प्रत्येक पीढ़ी मुझे धन्य कहेगी। 10 months earlier, the angel said to her, the one she is carrying will inherit the throne of David. 10 महीने पहले स्वर्गदूत ने उससे कहा था, जो उसके गर्भ में है दाऊद के सिंहासन का वारिस होगा। I am sure if you were in her place, you would be puzzled too. मुझे पक्का विश्वास है कि यदि आप उसके स्थान में होते तो आप भी उलझन में पड़ जाते। But she stood there by the cross as a symbol of every one of us who may be troubled by the will of God. लेकिन वो वहां क्रूस के साथ हम सब के चिन्ह के रूप में शायद परमेश्वर की इच्छा के कारण परेशानी में हो खड़ी रही। Not reaping the evil that you
have sown but suffering for the good that you have done. आपके द्वारा बोई हुई बुराई को काटते हुए नहीं, लेकिन जो आपने किया उसकी भलाई के लिए दुख उठाते हुए। Mary is a symbol for everyone who is saying, I don't understand the way God is leading. मरियम उस प्रत्येक मानव का चिन्ह है जो कहता है, मुझे परमेश्वर के द्वारा अगुवाई का तरीका समझ में नहीं आता। Mary is a symbol of everyone who is living with disappointment. मरियम उस हर मानव का चिन्ह है जो निराशता में जी रहा है। Mary is a symbol of every one of us who is saying things do not work the way they expected. मरियम हम में से उस प्रत्येक व्यक्ति का चिन्ह है जो कह रहा है कि वैसा नहीं हो रहा जैसा वो चाहते हैं। There are times when we think it will be upward. कुछ ऐसे समय होते हैं जब हम सोचते हैं कि मसीह में सब कुछ उत्तमता में होगा, और फिर भी हमें ऊंचाई की ओर बढ़ना पड़ता है और हवा का सामना करना पड़ता है। In Mary we see someone who is puzzled and disappointed about the will of God. मरियम में हम किसी ऐसे को देखते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के विषय में घबराया हुआ और निराश है। Nevertheless, she stood by the cross knowing that God has a perfect will and will ultimately work things out. तो भी वो क्रूस के साथ खड़ी रही, जानते हुए कि परमेश्वर के पास एक सिद्ध इच्छा है और वही अंत में रास्ता निकालेगा। That is what all of us must do. यही हम सबको करना चाहिए। We must stand beneath a cross like Mary looking up at Jesus. मरियम की तरह हमें भी यीशु की तरफ देखते हुए क्रूस के नीचे खड़े होना आवश्यक है। So much for Mary. Now what about John? मरियम के लिए इतना कुछ, अब यूहन्ना के विषय में क्या हुआ? John is an example of a believer who does not stay away for far too long. यूहन्ना एक ऐसे विश्वासी का उदाहरण है जो ज्यादा समय तक दूर नहीं रह सकता। Jesus told the disciples a few hours earlier in the 26th chapter of Matthew that all of them will fall away on the account of him. कुछ घंटे पहले ही मत्ती 26 अध्याय में यीशु ने अपने चेलों को बताया था कि वो सब उसके कारण बिखर जाएंगे। In Matthew 26:35, Peter said, मत्ती 26 अध्याय 35 पद में पतरस ने कहा, Even if I have to die with you, I will never disavow you. यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। However, फिर भी read further. आगे पढ़िए। It says all the other disciples said the same thing, and John was included. ये कहता है बाकी सभी शिष्यों ने भी ऐसा ही कहा और यूहन्ना भी उन्हीं में था। By the time you get to verse 56 of Matthew 26, you read the following. जब तक आप मत्ती 26 अध्याय के 56 पद तक पहुंचते हैं, आप ये पढ़ते हैं, That all of his disciples deserted him and fled, all of them, no exception. कि उसके सब शिष्यों ने उसे धोखा दिया और भाग गए, वो सब, कोई नहीं रुका। Jesus was all alone. यीशु बिल्कुल अकेला था। But this had to be for a divine reason. लेकिन ये एक ईश्वरीय कारण से होना आवश्यक था। For one who dies for the sins of the world had to die absolutely alone. क्योंकि जो संसार के पापों के लिए मरने वाला था, उसे बिल्कुल अकेले ही मरना था। And he was. और वो वही था। But it was recorded that John alone came back. लेकिन ये दर्ज है कि यूहन्ना अकेला ही वापस आया। While Peter was somewhere wallowing in his tears of sorrow. जब पतरस कहीं पर अपने दुख के आंसुओं में लेट रहा था। While Thomas was somewhere living with his doubt. जब थोमा अपने शक के साथ कहीं जी रहा था। John alone came back and stood with him. यूहन्ना अकेला ही वापस आया और उसके साथ खड़ा हुआ। But I want you to see Jesus' attitude toward John. लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यूहन्ना के प्रति यीशु के बर्ताव को देखें। What James said is an everlasting truth. याकूब ने जो कहा वो एक अनंत सत्य है। He said, if we draw near to him, he will draw near to us. उसने कहा यदि हम उसके पास जाएं तो वो हमारे पास आएगा। Do you know why John was close to Jesus? क्या आप जानते हैं कि यूहन्ना क्यों यीशु के करीब था? Because John wanted to be close to Jesus. क्योंकि यूहन्ना यीशु के करीब रहना चाहता था। What it takes for you to be close to the Lord is an absolute desire to be near to him. आपके प्रभु के नजदीक रहने के लिए उसके नजदीक रहने की असल इच्छा की आवश्यकता है। When John came back, the Lord did not rebuke him.
जब यूहन्ना वापस आया तो प्रभु ने उसे डांटा नहीं। He did not say, I told you so, उसने ऐसा नहीं कहा कि मैंने तुम्हें ये बताया था, but rather he looked to him with dignity and gave him the highest responsibility that the dying Savior could give anyone around the cross. लेकिन बजाय इसके उसने उसे सम्मान से देखा और वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी जो मरता हुआ मुक्तिदाता वहां क्रूस के नजदीक किसी को दे सकता था। He said to him, Son, behold your mother. उसने उससे कहा, पुत्र, देख तेरी माता। Some of you may say, शायद आप में से कुछ कहेंगे, if the truth be known, I have made promises to stay near my Lord. यदि सत्य प्रकट होना है तो मैंने अपने प्रभु के नजदीक रहने के वादे किए हैं। I have made promises to stand for my Lord. मैंने अपने प्रभु के लिए खड़े होने के वादे किए हैं। I have made promises to walk with him. मैंने उसके साथ चलने के वादे किए हैं। But the truth is, I have neither stood for him or with him. लेकिन सच्चाई ये है कि मैं न उसके लिए न उसके साथ खड़ा हुआ। I have ignored him. मैंने उसे अनदेखा किया है। Listen to me, my listening friend. मेरे श्रोता मित्र, कृपया ध्यान से सुनिए। You can be like John and come back to him as John came back to him. आप यूहन्ना की तरह बन सकते हैं और उसके पास वापस आ सकते हैं जैसे यूहन्ना उसके पास वापस आया। He will not only restore you, he will give you responsibility for his service. वो न केवल आपको पुनः स्वीकार करेगा बल्कि अपनी सेवा की जिम्मेदारी भी देगा। He will say, pick up where you have left off. वो कहेगा, उठा लो जहां पर तुमने छोड़ा था। What about the Lord Jesus? प्रभु यीशु के विषय में क्या है? He has perfectly kept the law of God for 33 1/3 of a year. उसने परमेश्वर के नियमों को 33 और 1/3 साल तक सिद्धता से पूर्ण किया। And now on the cross, he's actually obeying the 5th commandment. और अब क्रूस पर असल में वो 5वीं आज्ञा का पालन कर रहा है। Honor your father and your mother. अपने पिता और माता का आदर कर। And the word here means treat them with dignity. और यहाँ पर वचन का अर्थ है उनके साथ सम्मान से व्यवहार कर। If anyone would have an excuse for not taking care of his mother, it was the Lord Jesus. यदि अपनी माँ की देखभाल ना करने का बहाना कोई लगा सकता था तो वो था प्रभु यीशु। But he, being the perfect man, has perfectly obeyed the law of God. लेकिन उसने श्रेष्ठ इंसान के रूप में श्रेष्ठता से परमेश्वर के नियमों का पालन किया। He took care of his mother as he was dying. मरते हुए भी उसने अपनी माँ की चिंता की। Jesus could not care for Mary anymore because he became the perfect substitute for our sins. यीशु अब अपनी माँ की और देखभाल नहीं कर सकता था क्योंकि वो हमारे पापों के लिए उत्तम विकल्प बन चुका था। And in looking at John, the Lord said to him, Now, John, I want you to stand for me. और यूहन्ना की ओर देखते हुए प्रभु ने उससे कहा, अब यूहन्ना, मैं चाहता हूँ कि तू मेरे लिए खड़ा हो। I need you to take my place. मुझे तेरी आवश्यकता है कि तू मेरा स्थान ले। I need you to stand up for me. मेरे लिए खड़ा होने के लिए मुझे तेरी आवश्यकता है। I need you to speak on my behalf. मेरे लिए बोलने के लिए मुझे तेरी आवश्यकता है। And I believe the Spirit of God is saying to every one of us today, और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर का आत्मा आज हम सब से कह रहा है, I need you. मुझे तुम्हारी जरूरत है। And I need you. और मुझे तुम्हारी जरूरत है। He is calling you by name, वो आपको नाम लेकर बुला रहा है, saying, I need you to stand by my church. कहते हुए कि मुझे तुम्हारी आवश्यकता है कि तुम मेरी कलीसिया के लिए खड़े हो। I need you to stand by my work. मेरे कार्य के लिए खड़े होने के लिए मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। I need you to stand by my gospel. मेरे सुसमाचार के लिए खड़े होने के लिए मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। I need you to stand by my kingdom. मेरे राज्य में खड़े होने के लिए तुम्हारी आवश्यकता है। I need you to be my substitute. मेरा विकल्प बनने के लिए मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। I need your mind. मुझे तुम्हारे दिमाग की जरूरत है। I need your hands. मुझे तुम्हारे हाथों की आवश्यकता है। I need your voice. मुझे तुम्हारी आवाज की जरूरत है। I need your money. मुझे तुम्हारे पैसे की जरूरत है। I need your time. मुझे तुम्हारे समय की आवश्यकता है। Will you say, Yes, Lord? क्या आप कहेंगे, हाँ प्रभु? It is my prayer that you do. ये मेरी प्रार्थना है कि आप ऐसा ही कहें।
Until next time, I wish you God's richest blessing. अगले समय तक मैं परमेश्वर से आपके लिए उत्तम आशीषों की कामना करता हूं।